کل پی ڈی ایم کا گرینڈ شو اپوزیشن رہنماؤں کی بڑی تعداد خطاب کرے گی. کئی سیاسی قائدین کوئٹہ پہنچ گئے. شہر میں حزب اختلاف جماعتوں کے بینرز اور جھنڈوں کی بھرمار. ملک بھر میں مہنگائی کا راج. آٹھ قیمتیں بڑھنے پر عوام سرکار سے ناراض. روٹی سستی نہیں بیچ سکتے. نان بھائی ڈٹ گئے. دواؤں کے ریٹ بڑھنے پر خریدار اور دکاندار امتحان میں پڑ گئے. پولیو آگاہی کا عالمی دن. ملک کے کئی شہروں میں ریلیوں اور سیمینارز کا اہتمام. بچوں کو پولیو ویکسین ضرور پلائیں. ماہرین کی عوام سے اپیل. پاکستان کے ساتھ اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری. جنگ میں ضلع انتظامیہ کی غفلت. شہر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. سڑکیں بھی کچرے سے بھر گئیں. تعفن زدہ ماحول بیماریاں پھیلانے لگا. شہر کی حالت بہتر بنائی جائے. عوام کا مطالبہ. میرپور خاص میں کھیل کے میدان تالاب بن گئے. 3 ماہ گزر گئے. پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. انتظامیہ نے گراؤنڈز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اور سردی آتے ہی چلغوزوں کی ڈیمانڈ تو بڑھ گئی مگر پاک چین بارڈرز بند ہونے کے باعث قیمتیں گر گئیں. گزشتہ سال 5,000 روپے کلو میں فروخت ہونے والی سوغات 2,500 روپے کی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر گاؤں گاؤں میں ہوں آپ کے ساتھ بسمہ خان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہے. اپوزیشن ایک اور پاور شو کے لیے تیار ہے. کل کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. کئی حزب اختلاف جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے. مریم نواز بلاول بھٹو نے عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے. جلسے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے. پنڈال سج گیا ہے. کرسیاں بھی لگ چکی ہیں. دیگر انتظامات بھی فائنل ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے دانش مراد سے. دانش بتائے گا بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے کل کوئٹہ میں. کیا تیاریاں ہو چکی ہیں, کیا باقی ہیں؟ جی دیکھیے, یہ کوئٹہ میں آنے والا جو کل ہے اس میں ایک ہائی پاور شو ہونے والا ہے. جو پی ڈی ایم کی جانب سے سیاسی جو حزب اختلاف کی 11 جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں کوئٹہ میں. ایوب اسٹیڈیم میں ان کا یہ جو جلسہ ہے یہ ہونے والا ہے. اس کے لیے تقریباً جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. اور جو گزشتہ شب بھی ہم نے جو وہاں کا دورہ کیا تو اس میں جو سیاسی قائدین تھے, ایم پی اے تھے, ایم این اے تھے, وہ بھی جلسہ گاہ کا دورہ کر کے اپنے اپنے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو جھنڈے ہیں وہ آویزہ کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی ایسا کوئی کمی نہ رہ سکے. اگر ہم ابھی قائدین کی بات کریں کہ کون کون سے سیاسی قائدین کوئٹہ پہنچے ہیں تو اس میں ابھی تک جو سب سے بڑی جو قائد ہیں وہ مریم نواز, وہ اس وقت کوئٹہ پہنچ چکی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کوئٹہ پہنچ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ شب کلات میں جو ہے وہ اسٹے کیا اور اب وہ کوئٹہ کے لیے نکل چکے ہیں. تقریباً وہ کوئی چند منٹ یا چند ایک ٹائم بعد وہ بھی کوئٹہ پہنچ جائیں گے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہم نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی حکام ہے ان سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کل ایک خصوصی طیارے کے ذریعے کوئٹہ پہنچیں گے. اگر کسی وجہ سے وہ کوئٹہ نہ پہنچ سکے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اور اب کوئٹہ ایئرپورٹ پر, کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو پی ڈی ایم کے کارکن ہیں, پی ڈی ایم کا ایک ورکر ہیں, ان کو جو محسن داوڑ ہے, ایم این اے محسن داوڑ, ان کو روک لیا گیا ہے تو ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. وہ بھی اس وقت ٹھیک ہے. کل کے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے. دانش, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. کوئٹہ میں کل پی ڈی ایم جلسہ کرے گی تو دوسری جانب غزر میں بھی سیاسی سرگرمیاں زوروں پر ہیں. گلگت بلتستان الیکشن کی وجہ سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں کئی مقامات پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. مختلف جماعتوں کے بینرز دکھائی دے رہے ہیں جبکہ کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید تفصیلات جانیں گے شیریں حضرت سے. جی شیریں, بتائیے. اس وقت ہم غزر میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور اس حوالے سے غزر بھر میں سیاسی کمپین اپنے عروج پہ ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں آزاد امیدواروں کے کارکنان جھنڈے لگا رہے ہیں. سیاسی کمپین کا زور و شور سے آغاز ہے. جوڑ توڑ ہو رہے ہیں. مختلف آزاد امیدوار ایک دوسرے کے حق میں, سیاسی پارٹیوں کے حق میں ڈرا ہو رہے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری بازار مختلف سیاسی اور آزاد امیدواروں کی جھنڈوں سے بھری پڑی ہے. مرکزی گورنمنٹ کی کسی کینڈیڈیٹ کو ابھی تک غزر سے جتوایا نہیں گیا ہے.
या तो आज़ाद उम्मीदवार को जितवाया जाता है या मुखालिफ किसी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाता है। जी महंगाई का वबाल, आवाम बेहाल। जी हाँ, मुल्क भर में अशिया खुर्द की कीमतें बढ़ने से लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। कई शहरों में फ्लोर मिल्स और गोदामों को सरकारी गंदम फराहम की जा चुकी है, मगर आटे की कीमत में कोई कमी नजर नहीं आ रही, जबकि नान भाई सरकारी रेट पर रोटी फरोख्त करने पर तैयार नहीं है। दूसरी जानिब दवाओं की कीमतों में भी इजाफे पर काफ़ी तफ्तीश देखने में आ रही है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए, सूरत हाल के बारे में आगाह करने के लिए हमारे साथ ठट्टा से मौजूद हैं ताज़ा गुल, कोयटा से इस्मत आला समालानी और मट्टा से बहार अली। सबसे पहले रुख करते हैं ठट्टा का, जहाँ से ताज़ा गुल हमें बताएंगे। ताज़ा गुल बताएगा आटे के रेट कहाँ तक पहुँचे हैं? आज जी ठट्टा और सेजावल में जो है सरकारी गंदम जो है फ्लोर और चक्की मालकान को जारी होने के बावजूद ताल जो है आटे की कीमत में कमी वाक़ई न हो सकी है। और शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो 70 रुपये किलो, दही इलाके में की अगर हम बात करें तो आटा 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। एक शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं वो क्या कहते हैं। असल बात ये है कि गवर्नमेंट के पास गंदम की कमी नहीं है। अब जबकि गवर्नमेंट गंदम भी रिलीज़ कर रही है, फिर भी जो है शहरों में कम नहीं हो रहा है, तो उसका जो है मालूम करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। अभी भी शहरों में जो है वो 70 रुपया पर केजी जो है आटा मिल रहा है। हैदराबाद से जो आटा आ रहा है उसमें भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। यहाँ के शहरों ने, आवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस दिया जाए और आवाम को जो है सस्ता आटा फराहम किया जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथी रहेगा। रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ से इस्मत अमान हमें ज्वाइन किया। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद अब नान भाइयों ने भी जो है यहाँ पर रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि जो 20 रुपये में जो रोटी जो फ़रोख्त किया जा रहा था, इनकी जानिब से इनका कहना है कि अब इसकी कीमत बढ़ाकर 30 रुपये किया जाए, जबकि इसका वज़न जो 260 चल रहा है। इनका कहना है कि अगर 30 रुपये कीमत की जाती है तो जो वज़न है ये 320 ग्राम का जो है रोटी लोग फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर बताएं, 2 दिन से जो है यहाँ पर तंदूर बंद है, कितना मुश्किल का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। तंदूर तो बहुत अहम है खाने पीने के लिए। बंदा तंदूर से रोटी लेता है, तो तंदूर बंद है सारे शहर के। हाँ, हमारे घर नहीं है यहाँ पे, बगैर घर के रहते हैं, तंदूर से रोटी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इनका कहना है कि मज़ीद अगर ये इनका वज़न कम किया जाए या जो है कीमतों में इजाफे का जो है मुतालबा इन्होंने जो किया है, इसे जो है मंजूर किया जाए। जी ठीक है इस्मत, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं मट्टा से, जहाँ से बहार अली ने हमें ज्वाइन किया। बहार अली बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो पहले इसी मुल्क में जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, वो मौजूद है। और अदवायात की कीमतों में एक बार पहले भी इजाफा हो चुका था। अब दोबारा इजाफे से जो है लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी मेडिकल स्टोर के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोग महंगाई की वजह से इतनी तंग आ गई है कि यहाँ पे मतलब जो मरीज़ आते हैं वो ये जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनको जब मेडिसिन लगवा लेते हैं तो ऑलरेडी वो फीस भी ले लेते हैं। वो दवायात काफ़ी महंगी हो चुकी है, जो लाइफ सेवर ड्रग्स समझे जाते हैं और है। जी ठीक है, महंगाई के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते चलें, आपको बताएं कि महंगाई से किसान भी परेशान है। खाद की कीमतों में 600 रुपये फी बोरी इजाफा होने से काश्तकारों को इम्तहान में डाल दिया। आरिफ वाला किसान कहते हैं उन्हें ये फैसला किसी सूरत मंजूर नहीं, कीमतें फौरी कम की जाएं। इम्तियाज़ कादिर की ये रिपोर्ट। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने अब किसानों की जानब रुख मोड़ लिया। हुकूमत ने किसानों पर महंगाई का बम गिरा दिया है। खादों की कीमतों में फी बोरी 600 रुपए का होशरुबा इजाफा करके कर्जे के मारे किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। जिम्मेदार तो पहले ही कर्जा थले दबिया और साडे नाल कोई राहत की जाए, खादा नूं सस्ता किया जाए। हुकूमत नूं सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। खाद बहुत महंगी की है, जिमीदारां दी तरफों ऐलान किया जाता कि सानू मंजूर नहीं। किसान कहते हैं कि वो पहले ही महंगे बीज और ज़रिए अद्वियात खरीद कर फसल काश्त कर रहे हैं। ऐसे में अब खादों की कीमतें बढ़ाना किसान दुश्मन पॉलिसी के मुतरादिफ है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से खादों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। जिला राजनपुर में भी आवाम को अशिया खुर्द चीज़ें सस्ते दामों देने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से 5 मुख्तलिफ मकामात पर सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ हाफिज इम्तियाज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इम्तियाज़ बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर की सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी सहूलत बाज़ार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगाई है। और सहूलत बाज़ार में सबसे जो अहम था आटा शाट था। अब यहाँ सहूलत बाज़ार में आटा की जो नायाबी को ख़त्म करके आटा यहाँ पर अब लोगों को बड़ी आसानी से मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फ़कार अली खरल का ये कहना है कि राजनपुर में पूरे पंजाब से अब यहाँ से सब्जियाँ जाएंगी, ताकि हमारी जो गला मंडी है सब्जियों की मंडी से यहाँ पर सब्ज़ी की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सब्जियों के रेट जो हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल जेहलम सील कर दिया गया है। प्राइस प्रिंसिपल कोरोना में वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। बच्चों, उस्तातिज़ा और दीगर स्टाफ के लिए सैंपल टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ उमैर अहमद राजा जी। उमैर, आगाह कीजिएगा। उमैर से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्कूल जेहलम को सील कर दिया गया है। वाइस प्रिंसिपल में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। बच्चों, साथिज़ा और दीगर स्टाफ के सैंपल टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि सैंपल टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल जेहलम सील कर दिया गया है। वाइस प्रिंसिपल में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों, असातिज़ा और दीगर स्टाफ के सैंपल टेस्टिंग के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल जेहलम सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारा नुमाइंदे उमैर से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने वाइस प्रिंसिपल में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किया गया है। गुज़िश्ता रोज वाइस प्रिंसिपल साजिद डार का टेस्ट मुस्बत आया था, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों, टीचर और तमाम स्टाफ के कोरोना सैंपल लेकर भिजवा दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक जब तक ये सैंपल नहीं वापस आएंगे तब तक स्कूल बंद रहेगा। जी ठीक है, तब तक स्कूल बंद रहेगा। आपने हमें अपडेट किया उमैर, आपका शुक्रिया। अहम खबर शामिल कर आपको बताएं कि जी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद घर पहुंच गए हैं। अली इमरान सैयद का घर वालों से रब्ता हुआ है। उन्होंने फ़ोन पर अहलिया को बताया कि वो अपनी वालदा के घर पहुंच चुके हैं। वो 22 घंटे से लापता थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद घर पहुँच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे नसीम आदत से। जी नसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले अली इमरान सैयद ने अपनी अहलिया से राब्ता किया है और उन्होंने बताया कि वो अपनी वालदा के घर पहुंच गए हैं। अली इमरान सैयद गुज़िश्ता शाम को पुरसा तौर पर लापता हो गए थे और जिसके बाद पुलिस और दीगर अदारे उनकी तलाश में थे और एडिशनल आईजी जो है अपना उन्होंने भी उनके घर पर जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की थी और अब से कुछ देर पहले अली इमरान सैयद अपने घर पहुंच गए हैं। उनका कहना है वो खैरियत से हैं। इस हवाले से जो उनके अहल खाना है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि अली इमरान सैयद जो है वो घर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 22 घंटे से वो लापता थे और गुज़िश्ता शब से उनके अहल खाना ने पुलिस से रब्ता भी किया था और अब से कुछ देर पहले चाची पुलिस चीफ भी उनके घर गए थे तो तमाम अदारे मुतारिक थे। अब से तमाम वो अपने घर पे खैरियत से पहुंच गए हैं। ठीक है, तमाम वो अपने घर खैरियत से पहुंच गए हैं। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके हारिया में अहम सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि माजी में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल टूट फूट का बायस बन सकता है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सरदार साइरस निसार। टूटी फूटी सड़क अजाब बन गई, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी दुश्वारी पेश आती है। बीमार लोगों को खासकर आजकल हार्ट अटैक की ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है और भी दुश्वारी काफ़ी है, जो पैदल चलना भी इस पर मुश्किल है। माजी में सड़क का काम तो शुरू हुआ मगर 6 माह से ठेकेदार और अमले का कोई अता पता नहीं। अवाम का मुतालबा है सड़क का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। हमारा मतबाद रास्ता भी नहीं है, जो मतबाद रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार गुजार है और बहुत लंबा पड़ता है। मैं महकमा से गुजारिश करता हूँ कि ये जो काम वो सुस्त रवि से जो काम जारी है इनसे कहें कि ये जल्द अज जल्द हमारा काम कंप्लीट करें। खस्ता सड़कें अक्सर और बेशतर वक्त के ज़िया का बाइस बनती हैं। मयारी रोड्स बनाकर अवाम के कीमती वक्त को बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ सरदार साइरस निसार, न्यू न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर।
जबकि फिरोजवाला में जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-तमाम पर टूटी सड़कों और दीगर मसाइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि टूटी सड़कें, सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम हुकूमती गफलत का सबूत है। मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था, शादरा बेगम कोट चौक में सड़क की बदतरीन हालत ने हज़ारों इलाका मकीनों और मुसाफिरों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। हुक्मरानों की गफलत के बायस शहर भर की सड़कें टूट फूट और बदहाली का शिकार हैं। बेगम कोट चौक शादरा से शरकपुर जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। फौरी तौर पर इन मसाइल को हल किया जाए। मुजाहरे से जहांगीर अहमद खान, मुश्ताक भट्ट, राना अरशद अली और मसर एडवोकेट ने भी खिताब किया। रुख करेंगे झंग का। शहरी इंतजामिया की गफलत ने शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। झंग के दाखिली रास्तों पर भी गंदे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कचरा स्टॉक पड़ने पर आम वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर और जबकि बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। मज़ीद बताएंगे सफ्तर वसीम। जी सफ्तर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग सरगोधा रोड बंद के करीब, जहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर झंग को इंटर हुआ जाता है और ये जो गंदगी के ढेर हैं ये सबसे पहले झंग को इंटर होने वालों का इस्तकबाल करती हैं, जिसकी वजह से ये तूफ़ान भी फैल रहा है। इस वक्त यहाँ पर मेरे पास कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर। ये भाई मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर हैं। जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं देखकर बहुत परेशान होते हैं। खुदाया ये मैं डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं ना, ये हमारे पे मेहरबानी करें, इसको दूर करवाएं, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये शहर साथ गाड़ियां जा रही हैं, बड़ा माहौल ख़राब है। सिर्फ ये गंदगी की वजह से ये माहौल ख़राब है। डीसीओ झंग से जो है मुतालबा किया है कि इस तरह जो लगाए गए गंदगी के ढेरों को वो ख़त्म किया जाए ताकि वो बीमारियों से, इस तरह हादसा से वो बच सकें। जी। पन्नू आकिल में 10 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क तबाहली का शिकार है। लाखों रुपए के झूले तक गायब कर दिए गए हैं। पन्नू आकिल से नुमाइंदा न्यूज़ अली रज़ा मलिक से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से 10 साल कबल पन्नू आकिल शहर में अवाम की तफरी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क तामीर कराया गया था और इस पार्क में अवाम की तफरी के लिए लाखों रुपए की मालियत के झूले भी लगाए गए थे। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेनज़ीर पार्क उसकी तरफ से बनाया गया था, ये अब बहुत ही ख़राब हालत है जो हम बता नहीं सकते। यहाँ बच्चे आते हैं वो तो ऐसी नियत जाते हैं कि हम यहाँ खेलेंगे कूदेंगे, यहाँ बैठेंगे अशराफ से, ये वो तो आते हैं फिर देखे बाहर गेट से देख के चले जाते हैं। तफरी के लिए आने वाले शहरी मायूस होकर वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और अरबाब अख्तर से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस तबाह पब्लिक पार्क इसका नोटिस लेकर जल्द अज जल्द इसको बहाल कराया जाए ताकि यहाँ के शहरियों को तफरी के मौके हासिल हो सकें। जी। मुजफ्फरगढ़ में महकमा इनहार के मुलाजमीन के लिए बनाई गई रिहायशी कॉलोनी में सहूलियात के फुकदान के बायस कॉलोनी मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कॉलोनी सीवरेज, साफ पानी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात के साथ साथ रिहायशी क्वार्टर्स भी खस्ता हाली का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं फरहान हाशमी से। जी फरहान। जी बिल्कुल, महकमा इनहार की कॉलोनी में सहूलियात के फकदान के बायस यहाँ के रिहायशियों के लिए मुश्किलात और दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ता है। अगर बात की जाए इस कॉलोनी की मौजूदा सूरत हाल की, तो इसकी जो क्वार्टर रिहायशी क्वार्टर हैं और 4 दीवारी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और इसी तरह यहाँ के जो रिहायशी क्वार्टर हैं वो भी इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलोनी के कुछ रिहायशी, आइए इनसे जानते हैं कि इनको किस किस्म की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी 55-60 साल पहले तामीर हुई थी और उसके बाद आप देखें ये आपके सामने जो मंजर पेश कर रही है, इसकी 4 दीवारी नहीं है। 4 दीवारी काफ़ी अरसे से गिर चुकी है। यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, हमें दूर से पानी लेके आना पड़ता है पीने का। और उसके अलावा आप देखें कि यहाँ प्रॉपर कोई मतलब सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है। तो हकाम बाला से यही मुतालबा है कि उनको ये सहूलियात जो है मुयसर की जाएँ। जी। पोलियो के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दादू और पोलियो वर्कर्स की रैली का इनेकाद किया गया। दुनिया के दूसरे ममालिक से पोलियो जैसा खतरनाक मोजी मर्ज खत्म हो गया है। नामालूद बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों को 2 कतरा पोलियो का पिलाया जाए। अवाम पोलियो की टीमों से ताउन करें। 2 कतरा पिलाना नामालूद से 5 साल तक पिलाना लाजमी है। पूरी दुनिया की तरह आज दादू में पोलियो डे के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करें, उनका क्या कहना है। आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट दादू और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दादू की तरफ से पोलियो के आलमी दिन पे पोलियो की रैली का इनेकाद किया गया
اور آج پولیو دن منایا گیا اور یہ عوام سے اپیل کی گئی کہ اپنے خدا را چھوٹے جو بچے ہیں جو پیدائش سے لے کر 5 سال تک بچے ہیں ان کو 2 قطرے پولیو کے جو نا قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے معذوری سے بچائیں، 2 قطرے پولیو کو پلائیں. اسی دنیا کی طرح ہم بھی آج دادو میں پولیو کا ڈے منا رہے ہیں. جی مزید خبریں بنائیں گے بٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں رشوت نہ دینے پر اکاؤنٹ آفس کے کلرک کا ایم فل طالب علم پر تشدد. ساتھ آئے بھائی بھی سرکاری کام میں مداخلت اور دھمکیاں دینے کا جھوٹا پرچہ درج کروا ڈالا. اکاؤنٹ آفس میں مرحوم والدہ کی پینشن کے معاملات بغیر رشوت حل کروانے کے طالب علم پر سٹاف کا تشدد، کپڑے پھاڑ دیے اور آفس میں بٹھا لیا. سٹاف کے تشدد کے اعتراف کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. اکاؤنٹ آفس یونین نے الٹا طالب علم پر ہی چوری کا پرچہ درج کروا دیا. واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹس ہمایوں احسان نے انکوائری ٹیم کو ساہیوال اکاؤنٹ آفس بھیج دیا ہے جو واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ کرے گی. صفدرآباد کے نواحی گاؤں عادل گھر اوباش نوجوان نے 7 سال ننھی کلی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. صفدرآباد پولیس کی بر وقت کارروائی واقع ملوث درندے کو گرفتار کر لیا. ملزم معصوم بچی کو ورغلا کر قریبی سکول میں لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. آپ کو بتاتے چلیں کہ صفدرآباد کا یہ واقعہ ہے. نواحی گاؤں عادل گھر اوباش نوجوان نے 7 سال ننھی کلی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. دیپال پور آر پی پی اور ساہیوال کی ہدایات پر ڈی پی او اکاڑا فیصل شہزاد کی نگرانی میں ایس ایس پی شمس الحق دورانی کی 3 رات کی محنت سے پولیس کا واقعہ اڈا ساہیوال میں اہم پیش رفت، 1 ڈکیت ہلاک جبکہ 5 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں. دیپال پور واقعہ اڈا ساہیوال میں 7/8 کس ملازمین میں سے محمد سلیمان اور خالد علی کے گھروں میں مسلح گھس کر ڈکیتی کی اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک گھر میں اجتماعی زیادتی بھی کی. آر پی او ساہیوال پولیس نے دن رات کی محنت سے خطرناک ڈکیت گینگ کے ایک کارندے نذیر عرف اسلم شیخ اپنے کیرفے کردار تک پہنچایا. پولیس نے باقی مفرور ملزمان کے لیے چھاپوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے مزید 5 ملزمان کو بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے. یہاں شامل کریں گے ایک بریک، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق ایم پی اے آجاسم شریف کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. آجاسم شریف کا کہنا تھا کہ عوام آج بھی بطور وزیر اعلیٰ کیے گئے آپ کے عوامی فلاحی منصوبوں کو یاد کرتی ہیں. 1122 جیسے ادارے کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں اسپیکر پر اعلان کیے جاتے تھے کہ یہاں ادویات فری ملتی ہیں. آج عوام اس آواز کو سننے کے لیے ترس رہی ہے. موجودہ صورتحال میں عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کڈنی سینٹر کے نئے یونٹ کا افتتاح کر دیا ہے. اعجاز شاہ نے اپنے مرحوم بھائیوں کے نام پر 6 ڈائلیسس مشینیں بھی عطیہ کی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کہنا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل کی ماسٹر شعبے انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے. پولیس کو دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بی بی جھوٹ بولتی ہیں. نواز شریف نے تو برطانیہ میں علاج تو کیا، بخار بھی چیک نہیں کروایا. نواز شریف بالکل ٹھیک ہیں، انہیں واپس آ جانا چاہیے. آئی جی سندھ کو کسی نے اغوا نہیں کیا. ملک میں مہنگائی ہے، جلد کنٹرول کر لیں گے. آگے بڑھا کر بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کا آج 73واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. مساجد میں دعاؤں کے ساتھ دن کا آغاز ہوا اور سی سی آفس کے احاطے میں پرچم کشائی کی گئی ہے. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی ہے. ضلعی اداروں کے افسران، سول سوسائٹی، وکلاء، اساتذہ، صحافیوں، تاجروں سمیت تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر آفس سے پائلٹ سکول تک ریلی بھی نکالی گئی. شرکا ریلی سے کشمیر بنے گا پاکستان، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد اور بھارت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے. آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا حکومت نے واضح کیا ہے کہ 2022 تک صوبے کے 19 اضلاع کا اراضی ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے گا.
पटवारियों के लिए कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग अब लाजमी होगी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। 2 बरस बाद अराजी का रिकॉर्ड मिलेगा सिर्फ एक क्लिक पर। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश का कहना है 2 कबायली अजला समेत 5 अजला की अराजी का रिकॉर्ड आइंदा 5 बरस में मुकम्मल किया जाएगा। कि जून 2021 में 7 अजला में ये कंप्लीट हो जाएगा और बकाया में जून 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसको कंप्लीट कर लेगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फयाज अली शाह ने बताया मुख्तसर अरसे में रेवेन्यू से मुताल्लिक 29,000 में से 22,000 केसेस हल हो चुके हैं। जब हम ये कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 90% के करीब सूबा का रिकॉर्ड बन गया होगा और ये रिकॉर्ड बनेगा, इसको कंप्यूटराइज करना ये दिनों का काम होगा। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया कि 1894 में बनने वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए 2020 में रूल्स बनाए गए हैं। अराजी के इंतकाल में कई दीगर टैक्सों का खात्मा करके सिर्फ 2% स्टाम्प ड्यूटी आयद की गई है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। मीरपुर खास में हालिया बारिशों के बाद मुतासरा होने वाले खेलों के मैदानों को म्यूनसिपल कमेटी ने लावारिस छोड़ दिया। शहरियों ने खेलों के मैदान में महासेज बारिश का पानी जमा देखकर कचरा भी मैदानों में डंप करना शुरू कर दिया है। बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस मिरपुर खास ज़िला क्या बल्कि पूरा मिरपुर खास डिवीज़न जो है वो शदीद मुतासिर हुआ था, जबकि ऐसे में जो है वो मिरपुर खास के खेलों के मैदान भी जो है वो शदीद मुतासिर हुए थे। हम इस वक्त मौजूद हैं मिरपुर खास के 2 नंबर ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर जो है वो अगर इस ग्राउंड की हालत ज़ार के हवाले से बात करते हैं तो ग्राउंड की हालत ज़ार जो है वो पिछले 3 माह से इंतहाई अबतर है, क्योंकि बारिश के पहले स्पेल से जो है वो बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो गया था। इंतज़ामी तौर के ऊपर यहाँ ज़िला इंतज़ामिया नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से यहाँ से पानी मुतालबा सामने आ रहा है कि मिरपुर खास शहर की तरह इस इलाके को भी जो है वो अपनाया जाए, इस इलाके को या इस ग्राउंड को जो है वो लावारिस ना छोड़ा जाए। यहाँ से पानी की निकासी को मुमकिन बना के यहाँ पर से खेलों की सरगर्मियों को दोबारा शुरू किया जाए। उसके साथ साथ जो यहाँ पर खड्डे पड़ गए उन खड्डों को भी जो है वो पुर किया जाए, ताकि एक बेहतरीन अंदाज के अंदर और बेहतर तरीके से जो है वो खेलों की सरगर्मियों का आगाज़ हो सके। जी, मौसम बदलते ही डेरा गाजी खां में ड्राई फ्रूट की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। ठंडी मीठी रुत ने मांग पड़ी रौनकें भी बहाल कर दी हैं, जबकि खरीदारी में इजाफे पर दुकानदार भी खास से खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी जौहर, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दियों की आमद है और डेरा गाजी खान के कलमा चौक के ऊपर ड्राई फ्रूट्स की जो दुकान है एक मरतबा फिर सज चुकी हुई है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद अपने आप को सेहतमंद तवाना रखने के लिए ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और इस हवाले से दुकानदारों से भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह लोग परचेजिंग की तरफ आ रहे हैं। डेरा गाजी खान में इस वक्त अगर बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स की जो दुकानें हैं एक दफ़ा दोबारा सज चुकी हुई हैं और जो शहरी हैं वो भी ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, शहर गाँव से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।